हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, जो सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट की है उसमें से मतलब जितना मैं पढ़ाऊँगा उसमें से 350 प्लस आपके मार्क्स आएंगे। 330 350 एक्सपेक्ट करके चलो जो इस सीरीज़ को फॉलो करेगा अच्छे अच्छे से। दोस्तों, मैं आपको 10 से 12 बार, मिनिमम 10 से 12 बार मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा दूंगा नीट से पहले पहले। सो आप सीरीज़ को फॉलो कीजिए। पहली वीडियो में थोड़ी दिक्कत आई थी मुझे, मैं बना नहीं पाया, उस वजह से उसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो सब अच्छी बनेगी एंड वो फिर से मैं पढ़ा दूंगा दोस्तों आपको। आप पढ़ते रहिए बस। सो आज हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आएगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represent a rank or category। ठीक है। हर एक स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक रैंक या कैटेगरी को, ठीक है। अब क्या है, सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी and all categories together constitute the taxonomic hierarchy, ठीक है। each category refers to a unit of classifications, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon, plural taxa, ठीक है। अब क्या है कि सॉरी दोस्तों, अब ये क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like three pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified, and thus were were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. Group represent क्या करती है, कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स किसको करती है, रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन, हर रैंक या टैक्सॉन को ईच हर रैंक को ही टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। अब इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, टैक्सॉन, ठीक है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट biological entities biological entities biological entities कहाँ पहुँचे थे हम। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक्स, ईच रैंक्स आर टैक्सॉन्स, in fact represent a unit of classifications. These taxonomic groups categories are distinct biological entities, are not merely morphological aggregations, ठीक है। अब taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और divisions, ठीक है। फॉर प्लांट्स के लिए कौन सा होता है, कौन सा डिवीज़न होता है, एनिमल्स के लिए क्या होता है, फाइलम, ठीक है। डिविजन्स फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोवेस्ट, स्पीशीज हैव द लोवेस्ट, स्पीशीज की क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन
You may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individuals or group of organism. This helps in identifying similar and dissimilar among individuals of the same kind of organism as well as other kind of organism. अब हम पढ़ेंगे स्पीशीज। क्या पढ़ेंगे? स्पीशीज। Taxonomic study consider a group of individuals or organisms with fundamental similar as a species. A group of individuals जो होते हैं organism with fundamental similar as a species उसको बोलते हैं species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum potato, and Panthera liuens. All the three names indica, tuberosum, and liu represent the taxonomic specific epithet. ठीक है? While the first word Mangifera, Solanum, and Panthera are genera. ठीक है? And represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet represent different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris. Solanum indicates species like nigrum and Melongenia. Humans belong to the species Sapiens, which is grouped into the genus Homo. ठीक है? The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. ठीक है? अब हम पढ़ेंगे जीनस। दोस्तों जीनस जो है वो कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर करेक्टर in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. लेकिन ये दोनों बिलोंग करती हैं जीनस सोलेनम. ठीक है? अब लायन जो है पेंथेरा लियू, लिपर्ड जो है पेंथेरा पार्डस, टाइगर जो है पेंथेरा टिग्रिस, विच सर्वर्स कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पेंथेरा. जितने भी स्पीशीज हैं ये कौन सी हैं? पेंथेरा की हैं, जीनस ऑफ पेंथेरा. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम द अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. फेलिस में कौन सी आती हैं? कैट्स आती हैं. अब हम देखेंगे फैमिली. ठीक है? फैमिली जो है नेक्स्ट कैटेगरी. फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. ठीक है? फैमिली में जो है कम सिमिलरिटीज़ मिलेगी as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plants species. Among plants, for example, three different genera Solanum, Petunia, and Datura are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, genus Panthera comprising lions, tigers, leopard is put along with genus Felis, cats, in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively. जैसे कि Felidae कैट की होती है और Canidae डॉग की होती है. ठीक है? मैंने आपको ऊपर भी बताया था. अब हम करेंगे ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? You have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on number of similar character. ठीक है? अब generally order and other higher taxonomic categories are identified based on their aggregates of characters. Order being a higher category
is the assemblage of family, which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera include in the family. Plants family like Convolvulaceae, Salvinaceae and are included in the other polynomials. ठीक है, जो कन्वोलुलेसी और सोलनेसी हैं ये इंक्लूडेड हैं पोलीमोनियल्स के अंदर. ठीक है, अब मेनी बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, और मेनी बेस्ड जो हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स में द एनिमल्स अडर्स कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फैलेडी एंड कैनेडी. अब हम क्लास को देखेंगे. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड अडर्स. इस कैटेगरी में क्या होंगे, रिलेटेड अडर होंगे. फॉर एग्जांपल अडर प्रेमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन. अब प्रीमेटा में क्या आएगा, कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन. ठीक है, इज प्लेस्ड इन क्लास. अब मेमेलिया क्या है, क्लास है. along with the other carnivora that including animals like tiger, cat and dog. ठीक है, क्लास मेमेलिया हैज़ द अडर आल्सो. क्लास मेमेलिया जो है उसके अदर अडर्स भी हैं हमेशा से. ठीक है, अब हम करेंगे फाइलम. क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स. ठीक है, birds along with mammals constitutes the next higher category like phylum. ठीक है, birds along with mammals, birds जो हैं किसके साथ, mammals के साथ constitute करके next higher category called phylum. ठीक है, अब all these based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. presence of notochord है, ठीक है, एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है या नहीं है. ठीक है, आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए कॉर्डेटा के अंदर. ठीक है, अब इन केस ऑफ प्लांट्स classes with few similar characters are assigned to higher category called divisions. ठीक है, अब हम करेंगे किंगडम क्या है. all animals belong to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. In this classification system of animals, the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprising all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to two groups as animals and plants kingdoms. ठीक है, the taxonomic जो categories जो हैं from species to kingdom have been shown in ascending order. ये चीज़ important है. ठीक है, स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर 1.1. ये वाली फिगर है 1.1 वाली. ठीक है, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज. हाउएवर टैक्सोनॉमिक हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन द हियरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लुक एट द हियरार्की. फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. अगर हम स्पीशीज से, ये स्पीशीज है, यहाँ से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन करेक्टर जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. लोअर जो टेक्सा होगा मोर द करेक्टरिस्टिक्स दैट्स द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर. ठीक है,
Higher the taxa, greater is the difficulty of determining the relationship of other taxa at the same level. Hence, the problem of classifications become more complex. थोड़ा ये टेबल देखेंगे, जैसे ये इन्होंने बताया स्पीशीज से कहाँ जाएगा, स्पीशीज से जाएगा जीनस की तरफ, ठीक है। स्पीशीज से जीनस, जीनस से कहाँ जाएगा, फैमिली, फैमिली से कहाँ जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर से कहाँ जाएगा, क्लास, और क्लास से कहाँ जाएगा, फाइलम या डिवीज़न। और डिविजन्स किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। फाइलम किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये किंगडम, लास्ट कहाँ जाएगा, किंगडम की तरह, किंगडम की तरफ। अब इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, कोली प्लेड क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ठीक है, इसको याद रखने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब हम करेंगे टेबल इंडिकेटर। इस टेबल को 1 मिनट हम थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कॉमन नेम, बियोलॉजिकल नेम, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया। अब फाइलम या डिविजन्स कौन से में आते हैं, ठीक है। मेन जो है उसका बियोलॉजिकल नेम, मतलब मीन साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, ठीक है। अब इसकी जीनस कौन सी है, होमो है। मेन की जीनस कौन सी है, होमो है। फैमिली कौन सी है, होमिनाइडी है। ऑर्डर कौन सा है, प्रीमेटा है। क्लास कौन सी है, मेमेलिया है। फाइलम डिविजन्स कॉर्डेटा, ठीक है। अब होस्ट फ्लाई जो है, होस्ट फ्लाई जो है, जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं, उस मक्खी का जो बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। अब इसका जीनस कौन सा है, मस्का। फैमिली कौन सी है, मस्किडी, ठीक है। और ऑर्डर कौन सा है, डिप्टेरा, डिप्टेरा। क्लास कौन सा है, इंसेक्टा। फाइलम या डिविजन्स, बट इसका क्या होगा, फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब मैंगो, मैंगो जो है प्लांट है, उसका साइंटिफिक नाम क्या है, मैंगीफिरा इंडिका। जीनस कौन सा है, मैंगीफिरा। फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी। ऑर्डर कौन सा है, स्पिंडेल्स, ठीक है। क्लास कौन सी है, डाइकाटिलिडोने, ठीक है। अब इसमें डिविजन्स कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। ये प्लांट है, इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, डिविजन्स कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। अब क्या है, वीट गंदम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, टैटिकम एवेस्टियम, ठीक है। जीनस कौन सा है, टैटिकम। फैमिली कौन सा है, पोएसी। ऑर्डर कौन सा है, पोएल्स, ठीक है। क्लास कौन सी है, मोनोकाटिलिडोने, ठीक है। अब इसकी डिविजन्स कौन सी है, एंजियोस्पर्मी। सो हमारा यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है। सो थैंक यू दोस्तों।